This initiative was started with the aim of helping and supporting the students from all over the country to do well in higher studies and research. Shodh Foundation guiding the student for UGC preparation with quality resources, academic support, and highly qualified faculties since the past 4 years. But before we delve um, into this, let us invoke the blessing of the goddess of Vidya. I now request Vivek ji, a dedicated scholar from Jawaharlal Nehru University, to play Saraswati Vandana and formally initiate this session. विवेक जी आवाज नहीं आ रही। विवेक जी या कुन्देन्दु तुषारहार नवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीराभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतं शङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा Thank you, Vivek ji, for the spiritually uplifting invocation. Now, to share more about the vision, activities, and mission of Sodh, I now invite Krishna Sekhar Sharma, research scholar in Central University of Karnataka and a Karyakarta of Sodh. सभी को नमस्कार। It's truly an honor to be with you today. SHODH stands for Students for Holistic Development of Humanity. It is a national level initiative, a platform dedicated to building a vibrant, ethical, and inclusive research culture across India. Registered under the Companies Act of 2013, SHODH is now active in more than 20 states and is steadily growing as a hub for research, dialogue, and collaboration. But what makes SHODH especially relevant is the fact that SHODH bridges the gap between academic research and real societal needs. SHODH regularly organizes seminars, panel discussions, methodology workshops, research internships, and competitions, all designed to prepare students like you all for rigorous SHODH to instill research aptitude, to build research capacity, to create a unified platform. In simple words, SHODH is here to help you evolve from aspirants to academic change makers. Thank you so much and all the best. Thank you, sir, for articulating the spirit and scope of Sodh. Now, I would like to invite Mr. Bhagat, a research scholar in the Central University of Karnataka, to present the introduction of our speaker. सभी को नमस्कार। I am H. Bhagat, research scholar from Department of Law, Central University of Karnataka. It's my immense pleasure to introduce our speaker today,
Madam Janavi Thakur was born on 12 September 1997 in Mandi district of Himachal Pradesh, and she completed her class 10 and plus 2 from Loreto Convent, Tara Hall, and also she has completed her graduation from COE Goud Degree College, Sanjauli in the year 2020, and she completed her MSc in Geography from HPU in the year 2022, and also qualified NET and JRF in the year 2022 in December. And also she has qualification of 1 year PG diploma in disaster and disaster management from HPU in a batch 2022 to 2023. And finally, she got enrolled in PhD in Department of Geography at HPU in December 2023 and working on climate change. And she also have presented 7 papers in both national and international level. And she has published 3 papers. Two of them are peer reviewed, and one is Scopus. And she also currently member of Shodh in HPU. Thank you. Thank you, Bhagat. Now I would like to invite Ms. Janvi Thakur, ma'am, Research Scholar, Department of Geography, University of Himachal Pradesh, to deliver this lecture. Good evening, everyone. I believe I'm audible to you. Okay, so first of all, thank you so much for providing me this opportunity to actually deliver you 3-day lecture on communication, which forms your unit 4 for paper 1 NET examination. So my name is Janvi Thakur. Presently, I am a PhD research scholar in Department of Geography, Himachal Pradesh University. So it was really a very warm welcome by Shodh, and I am grateful to them. So without delaying much, now we shall start with the lecture, and I'll be delivering my lecture bilingually. That means कि मैं आपको हिंदी में भी जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करूंगी. किसी भी वक्त किसी भी एस्पिरेंट को ये लगता है कि जो मेरा सिग्नल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में उसी टाइम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. सो अगर अब आप सबकी अनुमति हो तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो शैल आई बिगिन? ओके. Is the slide visible to everyone? Right. So we are starting with unit number 4, जो कि है communication. कम्युनिकेशन से स्टार्ट करने का जो सबसे मेन एजेंडा है वो ये है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म में मिले हैं टू डिस्कस अबाउट दिस थीम. तो ये एक अपने आप में कम्युनिकेशन या संवाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है. अगर कम्युनिकेशन ही ना होता तो हम एक दूसरे के विचारों को जान नहीं पाते, हम आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े भी नहीं होते अपना जो नॉलेज है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए. तो जब भी आप लोग नेट पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन वाला यूनिट जो है वो पढ़ें तो इन पॉइंट्स पे विशेष तौर पर ज्यादा फोकस्ड रहें. जैसे कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, about what are verbal and non-verbal communication, what are the effective communication methods या features with respect to different contexts, what are the barriers
that we face in our communication skills. एंड फाइनली जो प्रेजेंट के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। इन पूरे 3 दिन के लेक्चर सीरीज में रिगार्डिंग दिस यूनिट मैं आपको पहले ब्रीफ करूंगी विद द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि आपको किस तरह से इस यूनिट को डील करना है या अपने बिहाफ पे फर्दर बाद में कैसी चीजों को इलाबोरेट करना है किन पॉइंट्स के अराउंड। और लास्ट में आई बी प्रोवाइडिंग यू विद अ PDF कंप्राइजिंग ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप इसके बाद जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें कि आपको कितनी चीजें जो हैं वो समझ आई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आया है फ्रॉम लैटिन ओरिजिन, और जो लैटिन वर्ड है वो है कम्युनिस, जिसका मतलब है कॉमन। ये इम्प्लाई करता है कि किस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग या एक कॉमन चीज पर एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा वाइटल प्रोसेस है, चाहे वो हम पर्सनल लाइफ की बात करें या फिर प्रोफेशनल लाइफ की। इसके आधार पर या इस प्रोसेस के आधार पर हम अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। इसमें 2 जो सिरे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले वो पर्सन जो चीजों को डिलीवर कर रहा है, जिसे हम सेंडर बोलते हैं, और दूसरा वो इंसान जो उन चीजों को सुन रहा है या ग्रहण कर रहा है, दैट इज द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम द सेंडर बिकॉज मुझे जो चीजें इस टॉपिक के बारे में पता है आई एम डिलीवरिंग इट टू यू, एंड आप जितने भी श्रोतागण हैं, लिसनर्स हैं, वो रिसीविंग एंड पे हैं, क्योंकि आप ट्राई करेंगे कि आप इन सारी चीजों को याद रख सकें, जान सकें और इन्हें समझ सकें। जब भी आप कम्युनिकेशन पढ़े, मतलब बहुत आसान है, वो आप सबको समझ आ जाएगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, आप कोई भी बुक ले लें या फिर इंटरनेट के डिफरेंट सोर्सेस को रेफर करें, वहां पे आपको कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों द्वारा दी गई डेफिनेशंस मिलेंगी कम्युनिकेशन पर। सो ट्राई टू रीड आउट एज मेनी डेफिनेशंस जितनी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन के, जो कि वो आपको MCQ क्वेश्चंस में पूछते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको 4 डेफिनेशंस प्रोवाइड करी हैं, जिसमें से जो सेकंड है वो रॉजर्स ने दी है, जो कहते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में एक नई चीज क्या जोड़ी कि वो सिर्फ शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करते हैं। सो दैट कुड बी योर वन स्टेटमेंट जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। वहीं अगर हम लास्ट वाली जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की वो देखें, जो कि WH न्यूमैन ने दी है, तो वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिंपली एक एक्सचेंज है फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस या इमोशंस का बाय 2 या मोर पर्सन। तो अभी तक जो हम 2 पर्सन्स की बात कर रहे थे, वहां पे इन्होंने एडिशन करी कि जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो, वो मोर देन 2 पीपल के बीच भी हो सकता है, एक ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, या फिर एक मास लेवल पे भी। अगली आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कम्युनिकेशन को आप एक हिसाब से डिफाइन किस तरह कर पाते हैं। तो नंबर 1 फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट कि ये एक सोशल प्रोसेस है। सोशल क्यों? क्योंकि जब भी 2 इंसान या 2 से ज्यादा इंसान आपस में बैठे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। एंड सोसाइटी या फिर सोशल होना इज क्रिएटिंग बॉन्ड्स और रिलेशंस विद डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। तो कम्युनिकेशन को एक सोशल प्रोसेस लिया गया है क्योंकि इसके थ्रू 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन क्रिएशन या शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है कि कम्युनिकेशन एक परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव शब्द का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है
जो यूनिवर्सल है और हर जगह इस्तेमाल में आती है या हर जगह पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका रॉ एग्जाम्पल लें, अगर हम घर में हैं तो घर में भी अपनी फैमिली के साथ चीजें शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बच्चों को भी ले लें जो बोल नहीं पाते, वो भी अपने एक्सप्रेशंस या फिर अपनी साउंड से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं। वहीं जब आप बाहर जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में या एकेडमिक लाइफ में, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। इसीलिए कम्युनिकेशन को एक परवेसिव फंक्शन माना गया है। थर्ड, कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैंने किसी को कुछ कह दिया एंड दैट इज द एंड ऑफ कम्युनिकेशन। नो, इट इज नॉट सिंगल वे। अगर एक चीज कही जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा रिप्लाई भी आता है। इस तरह से जो एंटायर प्रोसेस है आपकी कम्युनिकेशन की, वो कॉन्टिन्यूअस रहती है। फोर्थ, कि जो इसका मेन एम है वो होता है टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। अब हम बोल ही क्यों रहे हैं? ताकि हम अपना पॉइंट सामने वाले को बता सके। सो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन का जो मेन एम है वो है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। एंड द लास्ट वन इज दैट कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो सेंडर है वो कोई इंफॉर्मेशन या फिर थॉट सेंड करता है और रिसीवर एंड में लोग जो होते हैं उसे रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद अगर हम सक्सेसफुली अपनी बात सामने वाले को बता सके तो उस पे एक प्रॉपर फीडबैक भी जरूर आता है। फीडबैक का मतलब ये ना लें आप कि आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन जब किसी कम्युनिकेशन का रिप्लाई भी आता है तो रिप्लाई भी एक किस्म का फीडबैक ही होता है। या तो लोग आपके साथ अग्री करेंगे या तो डिसअग्री करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए इस लास्ट वाले पॉइंट को लेकर कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। अब बहुत बार ये होता है कि हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइक हम दिमाग में खुद को कुछ बोलेंगे या फिर वी आर गोइंग ऑन स्टेज, तो बैक स्टेज पे हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, डोंट बी अफ्रेड। तो वो खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो टू वे तो नहीं रहा, वो तो सिंगल वे हो गया। लेकिन उसमें हम टू वे उसको इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो बेशक हम ही डिलीवरिंग एंड और रिसीविंग एंड पे हो, लेकिन स्टिल इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक मॉडल आता है which is the SMCR मॉडल। अब जो SMCR है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है उन बेसिक एलिमेंट्स की जो कि आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में रहते हैं। जैसे कि योर S stands for sender, your M stands for message, C for the channel and R for receiver। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम भी साथ में दिखाया गया है जिसमें एरोस के थ्रू डायरेक्शन बताई गई है पूरी की पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस की। इसका एग्जाम्पल अगर करंट सिचुएशन से लिया जाए तो मैं सेंडर की पोजीशन पे हूँ, वही मैसेज क्या है? मैसेज है अ लेक्चर ऑन कम्युनिकेशन यूनिट। चैनल क्या है? चैनल है गूगल मीट प्लेटफॉर्म। और रिसीवर एंड पे कौन है? रिसीवर एंड पे आप सब एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये तो एक क्लीन मॉडल है जिसमें ना हम नॉइज की बात कर रहे हैं ना ही हम फीडबैक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉइज या फिर बैरियर क्या हो सकता है? बैरियर हो सकता है नेटवर्क ग्लिच, कि अगर मेरे एंड से नेटवर्क इशू हो या आपके एंड से नेटवर्क इशू हो तो जो मैसेज है वो उतना क्लियरली जो है वो डिलीवर नहीं होगा। अब जब भी सेंडर एक मैसेज को एनकोड करता है, देन व्हाट एक्चुअली इज एनकोडिंग? एनकोडिंग मतलब है कि मैं अपने एंड पे डिफरेंट रिसोर्सेज यूज कर ये लेक्चर या फिर ये मैसेज प्रिपेयर कर रही हूँ। दैट इज एनकोडिंग ऑफ द मैसेज। और डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग ये है कि व्हाट एवर पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू, आप उसमें से कितना अंडरस्टैंड या गेन कर पाते हैं। दैट इज द डिकोडिंग पार्ट।
और फीडबैक होगा कि वेदर इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये लगेगा कि इट वाज a beneficial one or it was simply a waste of time. That is your feedback. And feedback देने के लिए आप सब जो हैं वो independent रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं. यहाँ पे उन्हीं सारे प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन किया गया है या फिर उनका मटेरियल इकट्ठा किया गया है ताकि इन दी बैक एंड आपके पास रिवीजन के लिए कुछ हो, क्योंकि इन दी एंड ऑफ थर्ड डे मैं आपके साथ ये जो पीपीटी है वो शेयर करूंगी फॉर योर रिवीजन थिंग. तो यहाँ पे एक बार अगर आप स्क्रीन पे क्लियरली देखें तो यहाँ पे हर एक चीज सेंडर से लेकर नॉइज तक डिफाइन की गई है कि व्हाट डू दे एक्चुअली मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, कि क्यों कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंसेस हैं. इस फिगर में कुछ एक हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि इट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे या फिर हमारे कम्युनिकेटिंग स्किल्स वीक होंगे तो हमारे बीच में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगा. इसीलिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइज. यानी कि अगर इंटरप्राइज की बात करें, किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कम्युनिकेशन में अगर गैप नहीं होगा तो हर चीज बहुत ही स्मूथली वर्क करेगी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में होते हैं, अगर आप अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं, यू कम्युनिकेट वेल, यू कम्युनिकेट रेगुलरली, तो आपको चीजें या सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी रहती है. वहीं अगर आप थोड़े ओवर शाय हैं या फिर आपके टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड वो आपसे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो आपके जो सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसमें भी जो है वो दिक्कत ही रहने वाली है. द थर्ड इज इट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन कैसे हेल्प कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ डिसाइड करना चाहते हैं whether we have to visit a place or not, तो हम क्या करेंगे? हम सोशल मीडिया पे जाएंगे because that is also a platform for communicating. हम उन लोगों से बात करेंगे जो उस जगह पे पहले ही जा चुके हैं, उनके रिव्यूज लेंगे. तो उस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम जो है एक डिसीजन ले पाएंगे कि whether we wish to go to that place or we should go to that place or not. The fourth thing is that it increases managerial efficiency. यानी कि जिसकी communication skills अच्छी होंगी वो different चीजों को manage बहुत अच्छे से कर पाएंगे. The fifth one is that it promotes cooperation and industrial peace. Obviously, अगर हमारे neighbor के साथ in personal life और in the country border issue अच्छे communication हो तो एक ओवरऑल पीस जो है वो मेंटेन्ड रहता है. नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप. अब हम एक ऐसे लीडर को फॉलो करना पसंद करेंगे जिसके साथ हम रिलेट कर पाए, और रिलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान हमारे जो मुद्दे हैं उन पे बहुत ही ज्यादा फ्लुएंटली, बहुत ही ज्यादा डीपली कम्युनिकेट कर पाए. अब एक ऐसा लीडर, वी डोंट वांट अ लीडर जिसके साथ हम कोरिलेट ही ना कर पाए, जिसके और हमारे विचार ही ना मिले. और विचार मिलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन थिंक्स और हाउ वो परसीव करता है एक फ्यूचर. नेक्स्ट इज इट बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन. अब अगर कोई इंसान कभी बहुत उदास हो तो कोई दूसरा इंसान उसके साथ जाके कम्युनिकेट करे, उसे कुछ अच्छी बातें बोले, उसे एनकरेज करे, या एक बुरे एग्जाम के बाद कोई हमें बोले नो इश्यूज, यू कैन डू इट, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वी स्टार्ट एनकरेजिंग.
एक तो ऐसे आप मोरल बूस्टिंग कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो कि यू आर रीडिंग सम काइंड ऑफ रिटन मटेरियल, आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रहे एंड हाउ ही और शी ओवरकेम देम। तो आप वो पढ़कर, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, उससे भी मोटिवेट या आपका जो मोरल है वो बूस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इफ यू हैव टू ट्रेन समबडी, इफ यू हैव टू एजुकेट समबडी, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल नहीं पाती, मैं पीपीटी भी नहीं बनाना जानती, तो क्या मैं आज आपको ये कम्युनिकेशन पे लेक्चर डिलीवर कर रही होती? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट गुड इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, और जब तक मैं कोई चीज कम्युनिकेट ही नहीं करूंगी तो वो मुझसे आप तक कैसे पहुंचेगी? एंड द लास्ट पॉइंट दैट हैज बीन हाईलाइटेड हियर इज इट हेल्प्स टू मेंटेन पब्लिक रिलेशंस। अब चाहे वो किसी भी टाइप के रिलेशंस हो, लेट इट बी योर प्रोफेशनल, लेट इट बी अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, लेट इट बी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपकी जो बातचीत करने का स्तर है वो बेहतरीन है, इफ यू हैव अ गुड डिलीवरिंग पावर एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग पावर, तो जो आपके रिलेशंस हैं वो भी काफी अच्छे से मेंटेन्ड रहते हैं। इसके बाद जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या है, किसने क्या डिफाइन किया है, वो कहीं ना कहीं एक क्रैमिंग प्रोसेस है कि वो आप रीड करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं या उनको क्लासिफाई कौन से बेसिस पे कितने टाइप्स में किया गया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे की जा सकती है कम्युनिकेशन की। जो पहली है वो है इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, कि जो कम्युनिकेशन हो रही है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, वो उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, एक है, दो है, वो खुद से बात कर रहा है या व्हाटएवर। इसके बेसिस पर 5 तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। नंबर 1 इज इंट्रापर्सनल, number 2 is transpersonal, number 3 is interpersonal, number 4 is group, and number 5 is mass. नेक्स्ट जो बेसिस है या क्राइटेरिया है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। द थर्ड बेसिस इज योर डायरेक्शन, यानी कि whether the communication is vertical, whether it is horizontal, whether it is upward, downward या फिर diagonal। और जो लास्ट कैटेगरी है that is on the basis of channels। channels का मतलब कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन या तो वर्बल हो सकता है या तो नॉन वर्बल हो सकता है। जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। इस इमेज को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है वो अपने दिमाग में भी बिठा लेना है एंड आपकी मेमोरी में भी ये रहना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन से बेसिस पर या कौन से क्राइटेरिया पर कम्युनिकेशन कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। So let's start with the first basis or criteria, जो कि है on the basis of relationship। अब इसमें जो पहला टाइप है वो है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब जब एक इंसान is communicating with oneself only। oneself मतलब कि जब हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन की स्टेज पे होते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये या तो इंटरनल मोनोलॉग्स हो सकते हैं, या तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है, या थिंकिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे व्यक्तियों को आदत होती है कि एट द एंड ऑफ द डे वो सोने से पहले जरूर सोचते हैं कि हाउ वाज माय डे, अच्छा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या कर सकता था या कर सकती थी,
या फिर हम खुद को एनकरेज करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि नहीं नहीं, द क्वेश्चन पेपर विल कम, हमें सारे आंसर्स आते होंगे, बस कामली हमें अटेम्प्ट करना है। तो जो ये सारी कैटेगरीज होती हैं, जब हम खुद को ही संबोधित कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है? वी ऑल नो कि देयर इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस। कुछ लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं, दे से इट इज गॉड। कुछ जो नहीं करते वो जस्ट कहते हैं कि इट इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दैट इज अराउंड यू। तो जब हमारी इंटरैक्शन खुद को छोड़कर किसी डिविनिटी या किसी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस से हो रही हो, तो वो आपकी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन आती है। इसमें प्लीज आप, अगर हमारे कोई गुरु हैं जिन्हें आप मानते हो, उनके साथ की कम्युनिकेशन डजंट कम इन दिस, इट जस्ट कम अ कम्युनिकेशन विद समवन जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन spiritually we believe that high or divine soul to be there. अब या तो आप किसी ancestral, कभी हमें आदत होती है कि okay, if we have lost our loved one ना, then many people have a habit to actually look at the sky and talk to them कि आज मेरा दिन ऐसा हुआ, अगर आप होते तो मैं ये शेयर करता। इवन दैट इज योर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। कभी कभी वी हैव अ हैबिट कि व्हेनेवर वी गो टू प्रे, तो हम वहां पे भगवान से बात करते हैं कि हाँ भगवान जी ऐसा कर देना, या आज ऐसा हो गया एंड थैंक यू, यू सेव्ड मी। तो वो सारी आपकी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में आती हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड, transpersonal communication is very much different from self talk या intrapersonal and from interpersonal things, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी डिवाइन शक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो गैप होता है बिटवीन योर कॉन्शियस एंड योर अनकॉन्शियस माइंड, उसको फिल करने की कोशिश करता है। योर प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन या प्रेयर, वो सब जो है वो आपके ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। देन कम्स इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है, इंटर मीन्स दो के बीच में। सो जब आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन टू पीपल, दैट इज योर इंटरपर्सनल। इसमें वर्बली भी कर सकते हैं कि यू आर टॉकिंग टू देम, या फिर नॉन वर्बली हो सकता है कि यू आर राइटिंग टू देम, कि आप कुछ पर्सनली लिख रहे हैं, वो उसको पढ़ रहा है एंड अगेन रिप्लाइंग। जैसे चैटिंग हो जाती है आपकी व्हाट्सएप में, व्हेन यू आर जस्ट चैटिंग विद अ सिंगल पर्सन, दैट इज योर इंटरपर्सनल communication. या फिर when I'm talking to a friend on a phone, that is a interpersonal. When I'm talking someone on P, that is interpersonal. और वही जो आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, ग्रुप का मतलब है कि there is more than two people who are communicating, बट वो एक स्मॉल से मीडियम साइज ग्रुप है। वो ऐसा नहीं है कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, विद द इंटायर स्टेट और कंट्री, समथिंग लाइक दैट। उसका एक साइज जो है वो कम रहता है। कम रहता है मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी ह्यूज, समथिंग दैट यू कैन काउंट। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी राउंड अबाउट 43 से 50 के बीच में लोग जुड़े हैं, तो इसको हम एक ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि we are talking about this particular topic and the number of people is quite limited. वहीं जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो मन की बात करते हैं या फिर वो देश के नाम संबोधन करते हैं, that is the next category, the mass communication. Why? Because he is addressing the entire country together. इसको मास कम्युनिकेशन आप टेक्निकली या तो टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं
या रेडियो के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट डाल रहे हैं विच इज विजिबल टू एवरीवन, सो दैट इज अ मेथड ऑफ मास कम्युनिकेटिंग, बिकॉज आप लोगों तक अपना कोई विचार जो है वो पहुंचा रहे हैं एक साथ। तो ये जो हमारी 5 कैटेगरीज थी, ये थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसके बाद जो हम अगली कैटेगरी आज डिस्कस करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन द चैनल्स, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, प्लीज इसको सिर्फ यही ना कंसिडर करें कि आप बोल के कुछ कर रहे हैं। वर्बल में आपका रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम एक ऐसे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसको एक्सप्रेस आप शब्दों के थ्रू कर रहे हैं या फिर किसी एक लैंग्वेज या स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज कंसिडर्ड वर्बल। तो वर्बल को बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है कि ये सिर्फ जो ओरल कम्युनिकेशन है, जो बोल के हो रहा है, ओनली दैट इज वर्बल। नो, अगर आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड स्क्रिप्ट क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में लाइक इन इजिप्ट आपकी जो स्क्रिप्ट थी वो सिंबल से मतलब डिस्प्ले की जाती थी। सो डोंट से कि वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक सिंबोलॉजी है। तो इवन दैट पार्ट comes in your verbal communication only। क्यों? क्योंकि वो जो लिखते थे वो symbols में लिखते थे, but as it was form of your written communication, so it is considered in verbal communication only। अब कौन कौन से factors हैं जो आपको verbally communicate कर effective ताकि आप communicate करें उसमें help कर सकता है? Number 1, you need to think before you speak or write। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर बने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू थिंक बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट, यू थिंक बिफोर राइटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट, you have to have confidence। You should be confident about whatever you're delivering। क्योंकि अगर आप ही में कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का, तो सामने जो रिसीविंग एंड में होगा, दे वोंट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली गेन और अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। द थर्ड वन इज बी क्लियर एंड कंसाइज। आपने बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता है किसी भी चीज को। यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प। कंसाइज का मतलब छोटा होना चाहिए पर दमदार एंड इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। लंबे लंबे एसेज सुनने का या पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। वाई? बिकॉज आज के सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो आप किसी को दे सकते हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज देयर टाइम। टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फोर्थ, बी अवेयर ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो। अब अगर आप बोल के नहीं कर रहे हैं, समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्रेस विद योर आईज और विद योर बॉडी लैंग्वेज। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि आप उसको कुछ मिसलीडिंग ना कम्युनिकेट करें। लाइक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन अ क्लासरूम, कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा, देन डोंट गिव दैट एक्सप्रेशन कि आपको सब आ रहा है। शो दैट ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, शो दैट क्वेश्चन मार्क, ताकि आगे जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हें पता चले ओके वी हैव टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर। अगर आप वहां पे बहुत कॉन्फिडेंटली बैठेंगे कि नहीं हमें सब आ रहा है, तो दैट इज अ मिसलीडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। फिफ्थ इज बी अ गुड लिसनर। अगर आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक गुड और पेशेंट लिसनर्स भी हों, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज आपके माइंड में चल रही हो वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका स्पीकर भी सेम चीज बोल रहा हो। So that's why you need to be a good listener before being a good speaker. Sixth is think about the perspective of your audience.
अब आपको वो भी ध्यान में रखना है कि जिनको आप बोल रहे हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी नीड ऑफ आर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो लाइक currently there are people from different states all throughout the country. तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं बायलिंगुअल चलूं, बिकॉज कुछ ऐसे होंगे जिनकी ग्रास्पिंग पावर वुड बी बेटर इन हिंदी, एंड कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके. सो मुझे एक बैलेंस बनाना है, नंबर वन थिंग. नंबर सेकेंड, आई हैव टू बी कंसाइज व्हाइल डिलीवरिंग दिस 3-day लेक्चर. क्यों? क्योंकि टाइम कम है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एटलीस्ट आपको वो सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो टच करवा लूं, अगर मैं उनकी डिटेलिंग ना भी करवा पाई. सो दैट makes it very clear कि we have to think about the perspective of the audience also. ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना पसंद है then I can go on and on for 3-4 hours. No, I have to be very sure what my audience wants from me. And the last thing is that vary your vocal tone. कभी कभी different चीजें बोलने के लिए आपको different tones में बात करनी पड़ती है. Sometimes you need to be high pitched, sometimes you need to be very soft, and sometimes you need to be like normal. कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे है कि इस पे ज्यादा स्ट्रेस लेना है, तो या तो मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज करूंगी या उसको स्ट्रेस डाल के बोलूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले नो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. पर हाँ, अगर मुझे लगेगा दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, तो मैं उसको एक नॉर्मल टोन में डिलीवर करना चाहूंगी, ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस उस बात पर क्रिएट ना हो. नाउ दिस इज कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं. तो 2 टाइप होते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन दैट फिगर. वो है ओरल एंड योर रिटन. ओरल का मतलब है जब हम अपने मुंह से शब्दों को बोल रहे हैं. We are using our mouth, our voice to actually say out something, deliver our message, share our ideas. तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है. इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स पे प्लीज फोकस कीजिए. बहुत बार उनके क्वेश्चन ये होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल और नॉट पार्ट ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन, या कौन है. तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा. इसमें आपकी पब्लिक स्पीच हो सकती है. पब्लिक स्पीच मतलब कोई पॉलिटिशियन दे रहे हैं या आप अपने क्लासरूम में दे रहे हैं, दैट can come in your oral communication. News reading, जो आप न्यूज सुनते हैं, that is part of your oral communication. Television, then your radio, then your telephone, your mobile conversation, या अभी हम ये ऑनलाइन ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इवन दैट कम्स इन योर ओरल कम्युनिकेशन. यहाँ तक कि अगर हम रेडियो पे, यही नहीं कि सिर्फ आपसे वो रेडियो जॉकी बात कर रहा है, जो वो गाने बजाते हैं, इवन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन. नाउ रिटन कम्युनिकेशन, इट डील्स जब हम लैंग्वेज का या सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं टू राइट डाउन समथिंग दैट मेक्स सेंस. अब इसमें राइट डाउन समथिंग का मतलब ये नहीं है कि यू कीप राइटिंग ABCD or A, which doesn't make a sense. You have to write some words that actually makes some sense or with which you are actually expressing your ideas. तो उसको हम written communication में consider करेंगे. जैसे कि कोई भी हैंड रिटन नोट हो सकता है या टाइप्ड नोट भी हो सकता है, आपके न्यूज़पेपर्स या आपकी मैगजीन्स या फिर लेटर्स, बुक्स, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आती हैं. अब जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट हो सकता है, बिकॉज हमेशा यू कांट स्पीक एवरीथिंग एंड एनीथिंग. समथिंग यू जस्ट नीड टू एक्सप्रेस without speaking or writing a single word. तो जब भी आप लैंग्वेज या शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, बल्कि आप यूज कर रहे हैं किन चीजों का, साइंस का, सिंबल का, कलर का, जेस्चर का, बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन का, तो वो आपका पार्ट फॉर्म होता है ऑफ नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन। अब साइंस की अगर आप बात करें, for example, when you have to ask someone to keep quiet and you can't say it, you put a finger on your lips. Why? Because that symbolizes कि चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें अगर आप देखेंगे कोई इंसान अगर बोल या सुन नहीं सकते तो उनकी अपनी एक साइन लैंग्वेज होती है, इवन दैट इज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वही कलर्स की बात करें, कभी आपको किसी चीज का विरोध करना होता है बट यू डोंट हैव टू टेक आउट अ रैली, आपको अपना काम भी करना है पर स्टिल विरोध करना है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए भी द टीम इट वेयर्स अ ब्लैक रिबन। तो वो क्या है? वो एक कलर है, ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ समथिंग, किसी चीज का विरोध करना। या फिर पीसफुली आप किसी को काले झंडे दिखा देंगे, वो भी उसको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। वहीं अगर आप रेड कलर देखेंगे कहीं भी, तो अगर रोड साइन लैंग्वेज में भी देखें, रेड मीन स्टॉप, तो उसके लिए कोई आपको बोल तो नहीं रहा रुकने के लिए। ट्रैफिक लाइट रेड ब्लिंक होती है तो सबके सब खुद रुक जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इवन दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है वहां से डिपिक्ट हुआ है कि ठीक है अभी ये वाली लेन स्टॉप होगी, दूसरी लेन जाएगी। जेस्चर होता है, लाइक व्हेन gesture या body language is a very tricky thing. If a person is actually wishing you with a very warm smile, then that's a signal कि वो आपको वेलकम कर रहा है। लेकिन हाँ, कोई मुंह से बोल रहा है कि प्लीज आइए, लेकिन उसके चेहरे पे वो एक जेन्युइन स्माइल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है that he or she doesn't want you to come in or to join them. So you even have to take those communication signs as very important. Facial expression हो सकता है, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं and you know कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है। If someone is very delighted या happy तो उसकी eyes बड़ी हो जाएंगी। या फिर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि एकदम से बहुत कोई खराब सी चीज दिखती है तो आपका मुंह बन जाता है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, दोज आर पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस में ये चीज इसलिए डाली गई है बिकॉज द एग्जाम जिसके लिए आप बैठ रहे हैं उसके बाद ईदर यू विल बी अ रिसर्चर जो लोगों के बीच में जाके लोगों की परसेप्शन जानने की कोशिश करेंगे, और यू वुड बी प्रोफेसर्स। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो सर्वे करते हुए आपको अपने जो रिस्पोंडेंट है उनके एक्सप्रेशन से पता चले whether whatever they are answering to your question that is right or wrong. Secondly, when you're teaching, when you're handling a class, आपको उनको देख के पता चले कि हाँ उन्हें समझ आ रहा है or they are not making any kind of sense with whatever you're saying. So इसलिए भी communication important है. It is not just important to pass an examination. It is important because it will form a very important part in your upcoming academic or professional लाइफ। तो जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर हम लास्ट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो काफी हेल्पफुल होती है जब हम किसी सामने वाले इंसान की थॉट्स या फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत बार द वर्बल कम्युनिकेशन दे डोंट गिव यू द इंटायर ट्रुथ। तो वैसे इंटायर ट्रुथ जानने के लिए या ऐसी सिचुएशन जानने के लिए जिससे हमें पूरी की पूरी सिनेरियो क्लियर हो जाए, हमें नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस हैं उन्हें भी सीरियसली ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड नोट डाउन करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारे अगले 2 मेजर बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे कम्युनिकेशन को, वो है एक तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड अगला है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। ये दो जो है वो हम कल करेंगे, दैट वुड बी कंप्राइज्ड इन टुमारोज लेक्चर ऑब्वियसली। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल वेदर जो हमने आज पढ़ा है आपको वो चीजें क्लियर हुई हैं या यू वांट मी टू चेंज माय स्टाइल फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। तो आप अपने सजेशंस जो हैं वो चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, और साथ ही आप या तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर अरविंद कौंटल ने पूछा है बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी। अगर आप ये बात
पूछ रहे हैं रिगार्डिंग योर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, तो आप एकदम सही पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि जब भी हम ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी की बात करते हैं। वहीं पे जो अगला चीज अंकुश शर्मा ने पूछा है वो लिखा है इट इंक्लूड जेस्चर्स टू। तो अंकुश आप प्लीज मुझे क्लैरिफाई करेंगे कि आप जेस्चर्स की बात कौन से पॉइंट के लिए कर रहे हैं? अंकुश, you can either write or unmute yourself. You are talking about gesture. ओके, वर्बल। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम जेस्चर की बात करते हैं देन दैट इज कंसिडर्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुझे विजिबल हुआ था कि किसी ने हैंड रेज किया था, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं वट एवर डाउट यू आर हैविंग राइट नाउ। प्लीज काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ जिन्होंने हैंड रेज किया था, अगर आपको कोई भी डाउट है। यस, पीपीटी मैं शेयर करूंगी। आई विल बी डूइंग इट डे आफ्टर टुमारो, या फिर आई विल बी शेयरिंग इट टुमारो ओनली सारी बनाकर, क्योंकि ताकि आप एक रिवाइज कर सकें और क्लास में आने से पहले भी थोड़ा रीड करके आए, ताकि अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप पूछे। संस्कृति, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। संस्कृति, यू मे काइंडली आस्क, आपका क्या डाउट है? जी, जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि मैंने ओके जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चंस आपको डे 3 को मिल जाएंगे। वो एक इंटायर पीडीएफ होगा दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ 100 to 200 क्वेश्चंस, या अगर उससे ज्यादा भी मिल पाए तो आई प्रोवाइड यू विद दैट, ताकि आप एंड ऑफ द लेक्चर उन सबको प्रैक्टिस कर सकें। यस, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जिनकी चांसेस हो सकते हैं कि वो आए अभी। सो नाउ संस्कृति, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। ओके, आई कांट अनम्यूट इट बिकॉज शायद आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी। तो संस्कृति, इफ यू कुड जस्ट राइट डाउन व्हाट इज योर डाउट, आई वुड बी हैप्पी टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया वट एवर वॉज योर डाउट, तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। जैसे कि हम आज हमने जो पहली कैटेगरी पढ़ी अबाउट कम्युनिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, तो ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, अकॉर्डिंग टू आप लोगों को क्या लगता है कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? एक इंटरपर्सनल, ग्रुप, या मास? आप अपना आंसर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, यू वर लिसनिंग क्वाइट अटेंटिवली। ओके, सो जो लोगों ने कहा ग्रुप, दे आर वेरी करेक्ट, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी यही दिया था कि वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, लाइक राउंड अबाउट 40 to 50। सो इसलिए ये एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन होने के लिए मेरे पास एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल चाहिए जिनको टेक्निकली आसानी से गिना ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रैली को संबोधित कर रही हूँ, या किसी इंटायर डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट या नेशन को, या पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, तो वो होती है मास कम्युनिकेशन। ये ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास जो आप लगाते हैं, दैट इज योर ग्रुप कम्युनिकेशन ओनली। जी, एक ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मन की बात बाय मोदी जी इज योर ग्रुप कम्युनिकेशन। सो आई होल हार्टेडली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड फॉर लिसनिंग अटेंटिवली, एंड आई होप कल भी आप टाइमली 7 PM पे क्लास ज्वाइन करेंगे, ताकि हम रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उन पे डिस्कशन कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव द क्लास।
Thank you, ma'am, for your insightful lecture on communication. Now we came to the end of the session. To formally express our gratitude, I now invite Sarvesh Dikshit, State Convener, Sodh, Himachal Pradesh, to deliver the vote of thanks on behalf of Sodh founder. Sarvesh Dikshit. शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस नेट जेआरएफ लेक्चर सीरीज में आज के रिसोर्स पर्सन जानवी ठाकुर जी, आपका इस वैल्यूएबल सेशन और जो आपने इस तरह प्रॉपर की पॉइंट्स को सबके सामने रखा है, उसके लिए आपका इस सेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज के हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और शोध की हमारी जो टीम है, उनके द्वारा मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना पेशेंसली आज के रिसोर्स पर्सन को सुना। और आगे भी जितने भी हमारे सेशन होंगे शोध के द्वारा, तो आप इसमें बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप टाइमली चैट बॉक्स पे आप उनको आप लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी शोध से आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और शोध फाउंडेशन के इस सेशन 2 में यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Sarvesh ji. Finally, as a fitting conclusion to today's satsang of ideas, I invite Vivek ji to lead us into serenity with the Kalyan Mantra. सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।